Hello children. Now today we are going to start the new chapter in maths, chapter number 15, mensuration. So in this chapter we will learn perimeter and area of 2D shapes. Okay, two dimensions figure. So first we have to see perimeter. So what is the perimeter? Perimeter is of a rectilinear plane. Figure is the sum of all its side. Perimeter means क्या कह सकते हैं हम? Sum of इट्स ऑल साइड मीन्स जो बाउंड्री है कि वो कितनी लेंथ उसकी कितनी है, ब्रेथ कितनी है, मीन्स टोटल वो बाउंड्री कितनी है उसकी. इट इज डिपेंड्स ऑन द फिगर. सो फर्स्ट सी दी पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल. तो ट्राइंगल में क्या होता है? दिस इज ऑल्सो रेक्टिलिनियर फिगर. रेक्टिलिनियर मतलब जो बहुत सारे नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स को एड करने पर बनती है. जैसे टू लाइन्स हैं तो इनसे हम कोई भी क्लोज फिगर नहीं बना सकते, बट टू मोर देन अगर हमारे पास लाइन सेगमेंट्स हैं. सो फर्स्ट फिगर अगर हम बनाते हैं दिस इज ट्राइंगल. अगर हम 4 लाइन सेगमेंट्स को मिला के बनाते हैं तो वो होगा स्क्वायर और रेक्टेंगल, क्वाड्रिलेटरल. ओके, सो फर्स्ट सी दी पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल. सो क्या होगा अकॉर्डिंग टू पेरीमीटर मींस सम ऑफ इट्स बाउंड्री. तो यहाँ पे कितने लाइन सेगमेंट्स है? 1, 2 and 3. देयर आर 3 लाइन सेगमेंट. सो पेरीमीटर इज द सम ऑफ ऑल 3 साइड्स मींस AB plus BC plus AC. Here it is given the length of the side is A, B and C. So perimeter of the triangle is A plus B plus C. Okay. For example, it is given length of AB is 8.5 centimeter, BC is 7.5 centimeter and AC is 10.5 centimeter. ये हमको given है. So how to find the perimeter? So apply the formula. क्या रहेगा perimeter? Sum of all sides. तो यहाँ पे तीनों साइड्स का सम कर देंगे. सो दिस इज 26.5 सेंटीमीटर. ओके, सो पेरीमीटर क्या होगा उस ट्राइंगल का? 26.5. डन. नाउ सी द सेकंड पॉइंट, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल. सो रेक्टेंगल हैज 4 साइड्स और अपोजिट साइड्स आल्सो इक्वल. सो क्या हो जाएगा? सम ऑफ ऑल 4 साइड्स. सो देयर आर 2 लेंथ एंड 2 ब्रेथ. सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2 into लेंथ प्लस ब्रेथ. अगर हम इसका फॉर्मूला बनाते हैं, बिकॉज there are 2 lengths and 2 breadth, तो L plus L 2L हो जाएगा and B plus B 2B. so 2 common हो जाएगा. so taking 2 as common, so 2 into length plus breadth is the formula of perimeter of a rectangle. For example, here is given length of a rectangle is 25.3 meter and breadth is 18.6 meter. So what is the perimeter of this rectangle? So apply the formula 2 into length plus breadth. So 2 into length plus breadth अगर इनका sum करते हैं this is 43.9 and multiply by 2. So answer is 87.8 meter. Okay. Now last point is perimeter of a square. Third point is perimeter of a square. So square किसी side है in a quadrilateral. If all sides are equal then it is called a square. So all sides 4 sides are equal. So sum of all 4 side means 4 into side. हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं in other words. So perimeter of a square is 4 into sides. For example, if side is given 2 and 1/4 meter, so it is written in mixed fraction. So इसका improper fraction क्या होगा? 9/4 meter. So perimeter find करेंगे. Apply the formula 4 into sides. So 4 into 9/4. यहाँ से सॉल्व हो रहा है, ये 1 टाइम कट हो रहा है. सो 1 into 9 9 मीटर. इट मीन्स perimeter of this square is 9 meter whose side is 9/4. Done. Okay, now see the exercise 15.1. In question number 5, find the perimeter of the given figure. So see the figure. This is a polygon. Okay, means number of line segments more than 5 and more than 4. Because अगर it has 3 line segment then it is called triangle, 4 line segment then it is called quadrilateral, 5 है then pentagon, 6 है तो hexagon. So हम क्या करते हैं? नंबर ऑफ मोर देन 4 हम उनको सबको किस में इंक्लूड कर लेते हैं? दिस इज अ पॉलीगन. सो हियर इट इज अ पॉलीगन. नंबर ऑफ साइड इज 1 2 3 4 5 6. ओके, सो व्हाट इज द पेरीमीटर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ पेरीमीटर? पेरीमीटर इज सम ऑफ ऑल साइड्स. तो हम यहाँ पे सम कर लेते हैं 4 plus 3 plus 3 plus 5 plus 7 plus 8. So total sum is 30. Okay, and sides is given in centimeter. So perimeter is also given in centimeter, है ना? So answer is
30 सेंटीमीटर। तो इस फिगर का आंसर कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। हियर इज ऑल्सो अ पॉलीगन, नंबर ऑफ साइड्स इज 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, सो पेरीमीटर क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो यहाँ पे सम कर देते हैं 9 + 3 + 3 + 6 + 3 + 6 + 3 एंड +3। ओके, सो टोटल सम कितना आ रहा है यहाँ से 36 एंड आंसर give the answer in centimeter. Okay, so perimeter is 36 centimeter. Done. Now see the question number 6. See the question is, it is given perimeter of any triangle ABC is 62 and also given three sides are AB is 19, BC is 23 and third side AC is given in the form of x + 5. So we need to find the value of x. इस क्वेश्चन में हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है। सो अकॉर्डिंग टू पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड्स मींस AB + BC + AC। तो अगर हम यहाँ पे वैल्यूज को पुट करते हैं, सो पेरीमीटर कितना है 62, AB 19, सेकेंड साइड 23 एंड थर्ड साइड इज x + 5। तो यहाँ से एक एल्जेब्रिक इक्वेशन बनेगा, हमने इसको ऐड किया है तो कितना हो गया 62 = 47 + x। सो बाय ट्रांसपोजिशन मेथड हमको पता है लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट मेथड है। सो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको ट्रांसफर कर देंगे 47 को तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो वैल्यू ऑफ x इज 15 सेंटीमीटर। डन। नाउ सी इसकी यूनिट अगर लिखना चाहें तो लेंथ नहीं पूछी है तो हम यूनिट नहीं लिखेंगे तो भी आंसर करेक्ट होगा। नाउ सी द नेक्स्ट, इन दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो गिवन पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 97। ऊपर वाले की तरह ही है बट इसमें लेंथ और ब्रेथ दोनों x की फॉर्म में गिवन है। लेंथ इज नॉट गिवन एंड ब्रेथ इज ऑल्सो नॉट गिवन। ये x की फॉर्म में गिवन है, लेंथ इज 2x - 1 एंड ब्रेथ इज x + 9। ओके, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? तो यहाँ देखते हैं हम अकॉर्डिंग टू पेरीमीटर क्या होना चाहिए 2 × लेंथ + ब्रेथ। तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे सारी वैल्यूज को। सो लेंथ + ब्रेथ अगर हम करते हैं तो यहाँ से देखो ये लाइक टर्म्स है 2x + x दोनों पॉजिटिव है, सो प्लस 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 ही रहेगा। सो 2 + 1 3x एंड -1 + 9 दोनों कांस्टेंट है, सो प्लस माइनस माइनस होगा एंड 9 इज ग्रेटर और उसके आगे पॉजिटिव साइन है, सो 9 - 1 कितना हो जाएगा +8। नाउ 2 इज मल्टीप्लाई आउटर ऑफ द ब्रैकेट। सो इसको हम अगर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों नंबर से। सो 2 × 3 = 6x + 2 × 8 = 16। Now 6x by shifting the variable and constant क्या होगा 91 - 16, 6x is 75, so value of x is 75/6। सिमिलर फॉर्म में इसको करेंगे चेंज टू 12.5। डन। बट अभी आंसर नहीं आया है। इस क्वेश्चन में हमको लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी थी। सो लेंथ क्या थी 2x - 1, सो पुट द वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशन। यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे, सो 2 टाइम ऑफ x मींस 12.5 is 25 एंड सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 25 is 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ से लेंथ कितनी गिवन हो गई 24। Similarly, we can find now breadth. X + 9 means 12.5 + 9. So answer is 21.5. So length and breadth is done. Okay. Now see the next topic. Circumference of a circle. हमने अभी देखी perimeter of circle. हमने 3 figures देखी थी यहाँ पर triangle, स्क्वायर, रेक्टेंगल और पॉलीगन्स। ठीक है, तो वहां पे तो नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स होते हैं बट 2D शेप में एक शेप और होती है जो सर्कुलर होती है, दिस इज कॉल्ड सर्कल। ठीक है, तो यहाँ पे इसका पेरीमीटर कितना होगा मींस इसकी जितनी बाउंड्री होगी वो उसकी पेरीमीटर होगी। सो पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस। सो डेफिनेशन इज द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल और द लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। ओके, तो वो क्या हो जाएगी उसकी सर्कमफ्रेंस हो जाएगी, जो उसकी टोटल बाउंड्री होगी। इट इज डिपेंड्स ऑन द रेडियस कि जितनी ज्यादा रेडियस होगी उसकी उतनी ही वो ज्यादा सर्कल जो है उतना ही बिग बनेगा और उसकी उतनी ही उसकी आउटर लेंथ होगी, हो ना। ओके ना। सो रेडियस क्या होती है, रेडियस वो फिक्स पॉइंट से फिक्स लेंथ होती है जिसके अकॉर्डिंग हम सर्कल बनाते हैं। सो दिस इज द रेडियस एंड टोटल अगर हम देखते हैं, अगर हम इसके दो पॉइंट्स को मिलाते हैं, सबसे लंबी जो कोड होती है दिस इज कॉल्ड डायमीटर एंड इट इज 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। ये रेडियस की डबल होती है। ठीक है, तो जब हमने यहाँ पे नोटिस किया अगर हम बहुत सारे डिफरेंट सर्कल बनाते हैं डिफरेंट रेडियस के,
तो वहां एक चीज नोटिस होती है कि सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज अप्रोक्सीमेटली 3 times its diameter. So now we can say approx में 3 times है, it means we can say कि circumference upon diameter means ratio of circumference और diameter is constant, कि वो उनका रेशियो क्या है, ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा. सो इसको हमने इस फॉर्म में डिराइव किया और वहीं से हमारी सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला निकलेगा C अपॉन D इज इक्वल टू पाई. उस कांस्टेंट को हमने एक नेम दे दिया, दिस इज पाई, क्योंकि इसकी वैल्यू भी अप्रॉक्स क्या होती है, 3.14 होती है. पाई इज अ कांस्टेंट, इसकी एक फ्रैक्शन वैल्यू होती है 22/7 और ये या फिर ये इरेशनल फ्रैक्शन है तो ये 3.14 में हम अप्रॉक्स वैल्यू लेते हैं इसकी. ठीक, तो उस कांस्टेंट के इक्वल ले लिया. सो यहाँ से अगर हम सर्कमफ्रेंस देखते हैं तो C इज पाई इंटू D, D इज डायमीटर, और अगर डायमीटर क्या होता है 2 times ऑफ रेडियस, तो अगर रेडियस गिवन है तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होगा, सर्कमफ्रेंस और पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज 2 pi r. ओके, where r is the radius of the circle. डन. तो ये फॉर्मूला हमको ये डिस्क्राइब कैसे हुआ मैंने वो भी आपको बता दिया है. हमें ये फॉर्मूला लर्न करना होगा. पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज 2 pi r. पेरीमीटर नहीं बोल के उसको हम सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, जिसे C से रिप्रेजेंट करेंगे. सो C इज 2 pi r, where r is the radius of the circle, D is the diameter of the circle, and pi is the constant, and value of pi is 22/7 और taking 3.14. अभी हमें क्वेश्चंस में वैल्यू क्या लिखनी होगी, 22/7. इफ इन द क्वेश्चन इज गिवन taking pi is 3.14, then we can write the value of pi is 3.14. okay, तभी आपको ये लिखनी है जब क्वेश्चन में गिवन हो. Now see the example. Question number 1. Here is the given diameter is 28. तो वैसे तो आप C के लिए ये भी लगा सकते हो पाई इंटू D. अदरवाइज आपको एक ही फॉर्मूला लाइन करना है, क्या होगा 2 pi r. तो रेडियस कैसे फाइंड करोगे, डायमीटर गिवन है, रेडियस क्या होती है, डायमीटर की हाफ होती है, बिकॉज डायमीटर इज 2 times ऑफ रेडियस. तो रेडियस कितनी हो जाएगी, डिवाइड बाय 2 कर देंगे. सो रेडियस इज 14. तो इस सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना आएगा, अप्लाई दी फॉर्मूला 2 pi r. ओके, सो 2 into 22/7 into radius is 14. सो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे. आफ्टर दी सॉल्विंग आंसर इज 88 सेंटीमीटर. तो सर्कल की रेडियस कितनी हो गई, 88. See the question number 4. A water sprinkle in a lawn spray water as far as 5 meter in all direction. तो रेडियस अगर वो 5 मीटर ऑल डायरेक्शन में वो वाटर को स्प्रिंकल करेगा, वाटर को ऐसे थ्रो करेगा, तो हमें पता है वहां पे एक जो वेट ग्रास होगी उसका एक सर्कुलर एरिया बन जाएगा. एक सर्कुलर एरिया में ही ग्रास जो है वो वेट गीली हो जाएगी. ठीक है, तो इसका मतलब हमें अगर इसकी बाउंड्री पता करनी है, क्योंकि इसमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ द आउटर एज ऑफ द वेट ग्रास, कि जितनी ग्रास गीली हुई है उसकी आउटर लेंथ कितनी है वो बताओ. इट मींस इट इज क्लियरली गिवन कि फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, क्योंकि वहां वो सर्कल बन रहा है तो आपको क्या पता करना है, वहां पे उसकी सर्कमफ्रेंस फाइंड करनी है. सो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला वही रहेगा 2 pi r. अब इस क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है टेकिंग द पाई एज 3.14, हमें यही लेना है. सो पुट द वैल्यू इज 2 into पाई 3.14 एंड रेडियस इज r. सो 2 pi r हमने सॉल्व किया. सो आंसर इज 31.4 मीटर. मीन्स लेंथ ऑफ द आउटर एज ऑफ द वेट ग्रास इज 31.4. Done. Now see the exercise 15.2. Question number 5 is the given a locomotive engine driving wheel of radius 2.1 meter. Okay, रेडियस कितनी है उसकी 2.1 मीटर है. सो हमको बताना है डिस्टेंस कवर्ड इन 8000 रिवोल्यूशन. अगर वो ड्राइविंग व्हील मतलब जो इंजन है वो वहां पे वो मूव कर रहा है उस पूरी एरिया में, तो हमें बताना है कि अगर वो 8000 रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा. तो हम देखें कि वो व्हील जो है उस इंजन का वो एक रिवोल्यूशन में कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है. तो रिवोल्यूशन का मतलब क्या होगा, अगर वो एक टाइम पे कंप्लीट घूमता है इसका मतलब वो क्या हो जाएगी उसकी सर्कमफ्रेंस. तो हम ये देख लेते हैं कि एक रिवोल्यूशन में कितनी डिस्टेंस कवर होगी. सो सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील इज पुट दी वैल्यू इन 2 pi r, क्योंकि सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला है रेडियस इज 2.1. तो सॉल्व करने पर कितना आ रहा है 13.2 मीटर. यहाँ पे मैंने 2.1 रख दिया, पॉइंट हटाएंगे अपॉन में 10 आएगा. सॉल्व कर लिया.
कितना हो रहा है 13.2. सो वी कैन से द डिस्टेंस कवर इन वन रिवोल्यूशन ऑफ अ ड्राइविंग व्हील इज 13.2 मीटर. सो now total distance covered by a wheel if it is has made 8000 revolution, अगर वो 8000 revolution कर रहा है तो क्या कर देंगे, multiply by 8000 of distance covered in one revolution. So total distance is 105600 meter. ये मीटर में है, change into kilometer divide by 1000. So answer is 105.6 kilometer. ठीक. Now see the next question. In question number 7, given two circular path is given. So circumference of outer circle is 110 and inner circle is 88. दोनों की हमें क्या दे रखी है, सर्कमफ्रेंस दे रखी है. कोई गार्डन हो गया या कुछ भी हो गया, उसमें दो तरह से पाथ बने हुए हैं, अंदर वहां पे गार्डन है, ठीक है. तो ये दोनों पाथ कैसे सर्कुलर है. हमें ये बीच वाला जो विड्थ है, बीच वाला जो पाथ है, इसकी विड्थ पता करनी है कि ये इसकी विड्थ कितनी है ना, कितना इसकी ब्रेथ है. सो अगर हमको यहाँ पे रेडियस पता लग जाएगी, रेडियस ऑफ आउटर माइनस रेडियस ऑफ इनर कर देंगे कि इतना ज्यादा है तो इसमें से इसको रिमूव कर देंगे. बट रेडियस कैसे आएगी, यहाँ पे सर्कमफरेंस गिवन है. सो रेडियस ऑफ आउटर सर्कल इज डिवाइड बाय 2 पाई, बिकॉज 2 पाई आर क्या होता है, फॉर्मूला ऑफ सी. सो रेडियस अगर फाइंड करनी है सो सी डिवाइड बाय 2 पाई, यही करेंगे. सो 110 डिवाइड बाय 2 पाई, ये कितना आएगा, 35/2 मीन्स 17.5. अब इनर सर्कल की सर्कमफ्रेंस कितनी थी, 88. तो यहाँ से रेडियस कितनी आ जाएगी, 14 मीटर. सो नाउ वी कैन फाइंड द विड्थ ऑफ द रोड, 17.5 माइनस 14, आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस. तो यहाँ से कितना आ गया, 3.5. सो नाउ वी कैन से द विड्थ ऑफ द रोड या पाथ इज 3.5 मीटर. देन नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 9. It is given a wire in the form of circle and radius is 56 centimeter. वो वायर ऐसा है, उसको हमने कहीं एक पॉइंट से कट कर दिया और कट करके उसको बेंड किया एंड इन दी शेप ऑफ स्क्वायर, देन फाइंड दी साइड ऑफ स्क्वायर. तो उसको इस शेप में बेंड किया, लेकिन उसकी लेंथ थोड़ी ना चेंज होगी, मीन्स उसका सर्कमफ्रेंस और जिस फॉर्म में हमने बेंड किया है वो दोनों उसका सर्कमफ्रेंस क्या आ जाएगा, इक्वल, या उनका पेरीमीटर क्या होगा, इक्वल. सो नाउ वी कैन से कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर. क्योंकि सर्कल से हमने किस फॉर्म में चेंज किया, उसको स्क्वायर फॉर्म में. तो पहले हम इसका सर्कमफ्रेंस पता कर लें, क्योंकि हमें यहाँ पे रेडियस गिवन है, कितनी है, 56. तो यहाँ से सी कितना आ गया इसका, 352 सेंटीमीटर, 352 सेंटीमीटर. So now it is bent in the shape of a square. So circumference of the square circle is equals to perimeter of square. So perimeter का फॉर्मूला क्या होता है, 4 into sides. So side of a circle is circumference divided by 4. कितना आ गया, 88. So now we can say the side of a square is 88. Done. See the next question, question number 10. एक ट्रैक बना हुआ है, ठीक है. तो कनिका उसमें राउंड करती है, तो हमको बताना है कि वो 1 राउंड कंप्लीट करने में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी. तो हम उस ट्रैक को देखते हैं. वो बीच में से रेक्टेंगल है और उसकी दोनों ब्रेथ पर, ब्रेथ वाली साइड्स पर 2 सेमी सर्कल बने हुए हैं विद द सेम रेडियस. ओके, दोनों की रेडियस कैसी है, सेम है. तो यहाँ पे अगर इन सर्कल्स को, सेमी सर्कल्स को कंप्लीट करते तो एक पूरा सर्कल हो जाएगा. तो हमको अगर सपोज उसने यहाँ से स्टार्ट किया तो ट्रैक में हमें कौन सी लेंथ करनी होगी, 112 प्लस सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल प्लस अगेन 112 प्लस सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सेमी सर्कल. सो हम क्या लिखेंगे, डिस्टेंस कवर इन 1 राउंड इज हाफ ऑफ सी प्लस 112, हाफ ऑफ सी प्लस 112. ध्यान रखना ये ब्रेथ वहां पर एड नहीं होगी, वो इसलिए गिवन है ताकि हम इसकी रेडियस पता कर पाए, क्योंकि ये इसके लिए डायमीटर का वर्क करेगी. तो रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी, 28 मीटर. तो रेडियस हो गई. तो अब यहाँ से देखो हाफ ऑफ सी और हाफ ऑफ सी, मैंने अभी बोला दोनों हाफ सर्कल मिलके पूरा सर्कल कंप्लीट कर रहे हैं. तो हमें सर्कमफ्रेंस फाइंड करनी होगी. सो 2 पाई आर, ये कितनी आ गई, 176 प्लस राउंड उस ट्रैक में और कौन सी लेंथ एड होगी, ये दोनों रेक्टेंगल की साइड्स. सो 112 प्लस 112 कितना हो गया, 224. मीन्स पूरा राउंड कंप्लीट करने में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी कनिका, 400 मीटर. सो डिस्टेंस कवर्ड बाय कनिका इन 1 राउंड इज 400 मीटर. डन. इस टाइप के ट्रैक वाले क्वेश्चंस और हो सकते हैं. सपोज आपको ऐसी शेप दे दी है एंड फाइंड दी पेरीमीटर.
या सर्कमफ्रेंस, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे आउटर जो बाउंड्री है वो कैसी है, यहाँ पे दो तो साइड्स है और ऊपर सेमी सर्कल है, तो यहाँ इसका सर्कमफ्रेंस पता कर लेंगे। ठीक, अगर शेप इस टाइप की है तो यहाँ पे सर्कमफ्रेंस का कितना पार्ट आ रहा है, पूरे सर्कल का 1/4 रिमूव किया हुआ है, मीन्स ये पार्ट कितना हो जाएगा 3/4 ऑफ अ सर्कल, और बाकी ये कितना होगा 0.7 है और 0.7 गिवन है, तो वो दोनों हम ऐड कर लेंगे किसमें, जो सर्कमफ्रेंस आएगी 3/4 ऑफ अ सर्कल। ठीक, सो इस टाइप से हम इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। ओके, थैंक यू।